the more demand in the market, if they have more business, honestly, they have more job. So this is the market capture is directly proportional to the job in the market, job opportunities in the market. So you can say in AWS, we have more job in respect to Microsoft and GCP. So GCP started little late their services, so they have 11% of market capture, and the cloud started by Amazon only. So that way they have entered the market early, and they have the more market capture. But the Azure is like increasing their market capture very fast. So in maybe in coming years, like Azure have more market capture. Same thing, like one thing came in mind. So what is the advantage of cloud? So the main advantage of the cloud is the scalability. So cloud allows you to easily scale your resources up or down based on your need. For example, like you have created a server in a cloud environment. Today you want 30 GB of RAM. So you can increase it to 30 GB. And next day, you don't want 30 GB. You want to downgrade your server. So you can downgrade it to 8 GB. That way, you can work more cost efficiently, like you can save your costing. But in the traditional infrastructure, like your server, you cannot do this. So this is the main advantage of the cloud. Like you can increase or decrease, you can scale up or scale down your resources. You can quickly add or remove computing power, storage, network capacity without having to invest in new hardware or make physical changes in your infrastructure. So this is the major advantage of the cloud. Another advantage is cost effectiveness. With cloud computing, you can avoid any upfront cost like purchasing or maintaining a physical hardware. Instead, pay to the resources. So in cloud, actually, it's working as a pay as you go basis. Like whatever you use, you need to pay for that, which can be more cost effective, especially for a smaller business or project with fluctuating resource demand. Like in the smart, you don't know what exactly you required. Maybe today you need one server, tomorrow you need four, and maybe after 1 month you again need one server. So you cannot purchase and sell the servers in the physical environment. But in cloud environment, you can easily create servers as per your requirement, and you can easily terminate those servers if you don't have the requirement. So this is the major cost effectiveness in the cloud environment. Another advantage, reliability and availability. So it's very reliable because cloud provide robust infrastructure and redundancy measures in place to ensure high availability. They have multiple data centers in the different location. So if one is failed, your application and data can be seamlessly shifted to another center to minimize the downtime. So I'm explaining a little bit about that, the data centers. So every cloud have data centers on the worldwide, and like AWS have the data center in Mumbai also. So they have data centers in the different part of the world. So they are synchronized. The data centers are actually synchronized. So whenever your application is down or one data center is down, it's automatically shifted to the other data center. So this is the availability factor, like it's always available. A third one is automatic update and maintenance. So if you talk about the maintenance and updates, so it's easily like update because see the centralized data center. So one location it's updated. So every server, whoever using, it's automatically updated. For example, if you have a Windows update, uh, you also see in your laptops also Windows always giving the updates about the Windows. So in that case, the data center people automatically update those update upgrades, and it is automatically reflect to your server. So that way, updation and maintenance is quite easy. Another
main feature is security. Like it's a like centralized data centers, so they can implement all kind of security and whatever environmental things required for the security of data, they will implement it. So that way, uh, give me a moment. Okay, so let's move on the like sizing cloud shift worldwide. So maybe you people are aware with the Gartner. Gartner is the leading research papers in the IT industry or technical industry. So Gartner, so actually what exactly I want to explain with this graph, like how traditional market is shifting on the cloud. So if you see this graph, like year wise, in 2019, you can see the gap of cloud and traditional cloud. And the projection for 2025 is the traditional will go down and the cloud will be go up. So what I'm trying to say कि अभी जो ट्रेडिशनल है आप देखो 2019, 2020, 2021 धीरे धीरे ट्रेडिशनल डाउन हो रहा है और क्लाउड का यूज बढ़ता जा रहा है और 2025 तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो क्लाउड का यूज है वो ट्रेडिशनल से ज्यादा हो जाएगा सो दैट वे यू अंडरस्टैंड कि मार्केट जो इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट या सर्वर मार्केट या जो मशीनों का पूरा मार्केट है वो शिफ्ट हो रहा है क्लाउड की तरफ से आप देखोगे आजकल ज्यादातर एप्लीकेशंस क्लाउड बेस्ड होती हैं फॉर एग्जांपल सेल्स फोर्स पूरा पूरा क्लाउड बेस्ड है आपको कुछ नहीं करना होता है ना तो आपको उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में जाना होता है ना उसके सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में जाना होता है ना उसके डेटाबेस में जाना होता है एंड यू जस्ट गो ऑन द ब्राउजर एंड यू जस्ट type the URL and you can use Salesforce. So that way, everything currently is shifting to the cloud. The traditional data centers, the traditional servers, the traditional hosting space, ये धीरे धीरे मार्केट से खत्म होता जा रहा है और आप देखो जो प्रोजेक्शन है 2025 तक जो ट्रेडिशनल मार्केट है वो डाउन हो जाएगी और क्लाउड की मार्केट अप हो जाएगी तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मार्केट में क्लाउड के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं तो लेट्स स्टार्ट सम इंट्रोडक्शन अबाउट द क्लाउड कंप्यूटिंग so basically cloud computing based on three pillars you must I think आप लोगों ने भी इसे सुना होगा software as a service that SaaS model which is most important model in the cloud infrastructure second is infrastructure as a service and third is platform as a service so I'm going to explain one by one a little bit about that introduction and also the main use cases some use cases which is connected to our daily life. So let's start with software as a service. Software as a service is a cloud-based software delivery model that allow end user to access software applications over the internet. So software is hosted on the some service provider server, and there is no need user to invest expensive infrastructure in order to use the software. So the SaaS cloud model is you can say the software distribution model where applications are hosted some third party providers. For example, अभी मैंने बोला जैसे
आप लोग देखते होंगे नेटफ्लिक्स। मैं नेटफ्लिक्स को एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। सो एग्जांपल्स ऑफ पॉपुलर सेल्स प्रोडक्ट आर जैसे गूगल क्लाउड, सेल्सफोर्स मैंने आप लोगों को बताया, जूम यू मस्ट हियर अबाउट दैट, नेटफ्लिक्स स्लैश स्पॉटिफाई। ये कुछ पॉपुलर सेल्स प्रोडक्ट्स हैं जो कि पूरा पूरा क्लाउड पे बेस्ड हैं और इनको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस हम यूज करते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स चूंकि सभी लोग यूज करते हैं मोस्टली आजकल, तो हमें ज्यादा समझ में आएगा। सो नेटफ्लिक्स इज एक्चुअली Netflix operate as a service provider and it's hosting vast library of content of its server. आप लोग भी देखते होंगे नेटफ्लिक्स, तो कितनी सारी मूवीज होती हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कितनी सारी सीरीज होती हैं, बट ये सारा कुछ एक सेंट्रलाइज सर्वर पे होस्टेड है। वहां पे ही इनका सारा डेटा पड़ा हुआ है और ये आपको सिर्फ क्या करना होता है, नेटफ्लिक्स में लॉगिन करना होता है और अपने पसंद की मूवीज या जो भी हम सीरीज देखते हैं उनको सेलेक्ट करना होता है और हम उनको देख लेते हैं। बट हम कभी ये नहीं सोचते कि इस मूवी को दिखाने में कहाँ स्टोरेज यूज हुआ है, कौन सा सर्वर लगा हुआ है, कैसे स्ट्रीमिंग हो रही है, कहाँ से इंटरनेट आ रहा है। सो आप देखोगे तो आजकल जो 4K प्लेटफॉर्म है वहां पे 1 घंटे की मूवी 6 GB के आसपास डेटा की होती है और इतना डेटा नेटफ्लिक्स अपने सर्वर्स पे ऑलरेडी स्टोर किए होता है। तो इसमें मेनली जो है जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सो नेटफ्लिक्स मेंटेन robust infrastructure with a vast number of servers and storage system to store and deliver its content. So like a lot of movies are there, a lot of web series is there. तो वो क्या होता है कि वो सारा कुछ मेंटेन करने के लिए इनके पास एक बहुत ही वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है और ये इंफ्रास्ट्रक्चर नेटफ्लिक्स इंजीनियर्स और ऑपरेशंस की टीम मैनेज करती है। सेकेंड आते हैं एप्लीकेशन। सो नेटफ्लिक्स आप देखोगे तो नेटफ्लिक्स इज डेवलप ए सोफिस्टिकेटेड स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, जो कि एप्लीकेशन आपके पास होता है एंड आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हो, डिवाइसेज लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स, स्मार्ट टीवीज एंड कंप्यूटर्स। दिस एप्लीकेशन हैंडल्स फंक्शन लाइक कंटेंट डिलीवरी, यूजर इंटरफेस, रिकमेंडेशंस, पर्सनलाइजेशन। आप देखते होंगे कि जैसे आप नेटफ्लिक्स में कुछ भी देखते हो तो वो आपके रिलेटेड चीजों को दिखाना शुरू कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक एक्शन मूवी देखी, देन इट्स ऑटोमेटिकली शो यू द एक्शन मूवी। तो दोज काइंड ऑफ पर्सनलाइजेशंस एंड रिकमेंडेशन ये एप्लीकेशन मैनेज करती है और ये एप्लीकेशन पूरा स्ट्रीमिंग को कंट्रोल करती है। बट ये एप्लीकेशन होस्टेड कहाँ है? होस्टेड है सेंट्रलाइज सर्वर पे, क्लाउड पे। और हम क्या करते हैं, हम सिर्फ उसका लॉगिन करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, लॉगिन करते हैं और हम उसको यूज करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है एक्सेसिबिलिटी। सो एक्सेसिबिलिटी में वही बात हुई कि आप घर पे बैठे हो अपनी एप्लीकेशन से, अपने डिवाइस से, ओवर द इंटरनेट। ओनली यू नीड एक्टिव सब्सक्रिप्शन एंड इंटरनेट कनेक्शन एंड यू कैन यूज द कंप्लीट नेटफ्लिक्स एनवायरनमेंट। सो SaaS प्रोवाइडर्स में नॉर्मली यही होता है कि जो एप्लीकेशन होती है वो किसी सेंट्रलाइज सर्वर पे इंस्टॉल्ड होती है, सारा डेटा वहां से प्रोसेस होता है और आपको जस्ट क्या करना होता है, इंटरनेट पे जाके उस एप्लीकेशन को एक्सेस करना होता है। यू डिडंट बोदर अबाउट कि कौन सा सर्वर यूज हो रहा है, कितना स्टोरेज है, क्या स्पीड है, इन सब से कोई मतलब नहीं होता। आपको सिर्फ अपने इंटरनेट और आपके अपने कनेक्शन से मतलब होता है। इसी तरह से स्केलेबिलिटी, तो आपने देखा होगा कि ह्यूज नंबर ऑफ पीपल एक साथ नेटफ्लिक्स यूज करते हैं और इतने इतने यूजर्स, सोचो कितना डेटा ट्रांसफर होता होगा इंफ्रा पे। लाइक अगर मिलियंस ऑफ यूजर यूज कर रहे हैं और सारे कोई मूवी देख रहे हैं तो सबके लिए ह्यूज डेटा ट्रांसफर होता है। बट दिस काइंड ऑफ डेटा एंड प्रोसेसिंग ऑटोमेटिकली मैनेज्ड बाय द नेटफ्लिक्स सर्वर, द क्लाउड सर्वर। सो दैट कॉज द स्केलेबिलिटी, लाइक स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस जो है यूजर को प्रॉपर स्मूथ देना, ये मेन चीज होती है। थर्ड है अपडेट एंड मेंटेनेंस। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हम मोबाइल पे यूज करते हैं और उस टाइम पे नया वर्जन आ जाता है, नेटफ्लिक्स का अपडेट आ जाता है। तो वो क्या होता है कि देखो अब एक जगह सेंट्रलाइज सर्वर है, वहां पे वो अपडेट इंस्टॉल होता है। तो all type of software updates and maintenance tasks and its infrastructure
एंड एप्लीकेशन, ये सारा कुछ ऑटोमेटिकली क्लाउड से मैनेज होता है। यूजर डोंट हैव टू वरी अबाउट इंस्टॉलिंग अपडेट्स और मैनेजिंग द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज। सो नेटफ्लिक्स हैंडल एवरीथिंग इन द बैकग्राउंड टू इंश्योर ए सीमलेस स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस। इसके बाद आता है पेमेंट मॉडल। आप देखो तो पेमेंट मॉडल में क्या है कि नेटफ्लिक्स ऑपरेट्स ऑन ए सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट मॉडल वेयर यूजर पे मंथली फी टू एक्सेस द सर्विसेज। So the subscription fee cover cost of infrastructure, application, development, content licensing and ongoing maintenance। मतलब आप जो पे करते हो, जो भी नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन फी पे करते हो, वो सब कुछ जो इंफ्रा का पूरा जो उनका कॉस्टिंग होता है, जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट का कॉस्टिंग होता है, कंटेंट लाइसेंसिंग की, क्योंकि ज्यादातर जो मूवीज आती हैं वो परचेज करनी पड़ती हैं, तो कंटेंट लाइसेंसिंग के लिए भी उन्हें ह्यूज अमाउंट पे करना होता है। तो ये सारा कुछ आपके सब्सक्रिप्शन फी के थ्रू कवर हो जाता है। तो by adopting the SaaS cloud model, Netflix can focus on delivering a high quality streaming experience to its subscriber without user needing to worry about software installation, updates और infrastructure management। So अगर आप देखोगे ना तो SaaS मॉडल इसका क्लाउड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है। और आप नेटफ्लिक्स के जैसे सोचो कि कितनी एप्लीकेशंस हैं। अगर आज के डे में आप स्मार्ट मोबाइल, स्मार्ट टीवी या फिर मोबाइल यूज कर रहे हो, तो आप देखो कितने से एप्स हैं जिनको आप सब्सक्राइब करते हो, यूज करते हो, और सारे क्लाउड बेस्ड हैं और सारे ही किसी न किसी क्लाउड पे रन हो रहे हैं और ह्यूज डेटा मैनेज हो रहा है वहां पे। तो ये सारा कुछ सैस मॉडल के थ्रू होता है। सो सैस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ क्लाउड यूज। नेक्स्ट इज IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सो अभी मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि क्लाउड क्या करता है, कि क्लाउड आपको प्रोवाइड करता है पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन इंस्टॉल डिफरेंट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। लाइक जैसे आप अपना लैपटॉप यूज करते हो उसी तरह से आप क्लाउड की मशीन यूज कर सकते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको परचेज नहीं करना होता है। क्लाउड क्या करता है, एज ए सर्विस आपको प्रोवाइड करता है। आपको क्या करना होता है, जैसे आप AWS के लॉगिन बनाते हो, आप कोई सर्वर यूज करते हो, तो आप उसके लिए उनको फी पे करते हो। वट एवर सर्वर यू आर यूजिंग, वट काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यू आर यूजिंग डिपेंड्स ऑन दोट, उनकी कॉस्टिंग डिसाइड होती है। तो infrastructure as service is a form of cloud computing that provide virtualized computing resource over the internet। So for example, जो हमारे मेजर क्लाउड प्रोवाइडर्स हैं, बेसिकली दे आर द एग्जांपल ऑफ IaaS प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल AWS, Azure or GCP or whatever cloud partner you are going to use। So if you want to use the resources, आपको क्या करना होता है, आपको सिंपल AWS या Azure पे एक लॉगिन क्रिएट करना होता है, जो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो। आप वहां पे जाके एक लॉगिन क्रिएट करो AWS पे, आप एक मशीन वहां पे बना सकते हो। आपको बताना होता है कि किस तरह की मशीन आपको चाहिए, कितना रैम चाहिए, कितना आपको हार्ड डिस्क चाहिए। कुछ प्री डिफाइंड कॉन्फ़िगरेशंस वहां पे होते हैं, आप वो कॉन्फ़िगरेशंस भी यूज कर सकते हो। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यूज करना है वो भी आप वहां पे बता सकते हो। और उसके अकॉर्डिंग क्लाउड क्या करता है कि आपके लिए एक मशीन क्रिएट करके दे देता है। और उस मशीन को आप, जैसे आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, ओवर द इंटरनेट आप उस मशीन को यूज कर सकते हो। आप वहां पे किसी भी वेबसाइट की होस्टिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू हैव योर ओन वेबसाइट और आपको होस्ट करना है, तो आप क्लाउड पे जाओ। अगर आपकी साइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है, तो वहां पे वर्डप्रेस इन्वायरमेंट क्रिएट करो, वर्डप्रेस इन्वायरमेंट का एक सर्वर लो और वहां पे अपनी साइट होस्ट कर दो। तो पूरा का पूरा आपको ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर से कोई मतलब है, ना तो आपको सर्वर खरीदना है, कुछ भी नहीं खरीदना है। एज ए सर्विस ये सर्विस प्रोवाइडर्स आपको सारा कुछ देते हैं। तो मेजर एग्जांपल्स ऑफ IaaS is AWS, Azure and GCP। तो it's easily I think understandable now। Third one, platform as a service। So platform as a service is a cloud computing model that provide a platform and environment for developers to build, deploy, and manage their application without complexity of underlying infrastructure management। तो लास्ट हमने पढ़ा कि इंफ्रास्ट्रक्चर इज ए सर्विस।
वो अलग था। अब क्या है कि एक प्लेटफॉर्म पूरा पूरा प्रोवाइड करता है क्लाउड, और वहां पे क्या होता है कि आप उस क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाके कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो प्लेटफॉर्म पूरा पूरा क्लाउड का, और जो भी एप्लीकेशन है वो आपकी। फॉर एग्जाम्पल ड्रॉप बॉक्स आपने सुना होगा। सो ड्रॉप बॉक्स में क्या होता है कि हम कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी फ्रेंड को या किसी को अगर वो डेटा देना हो तो आप उसका लिंक शेयर कर दो, एंड दे कैन डाउनलोड, इवन दे कैन व्यू द, इफ अगर वो कोई वीडियो फाइल है तो आपके फ्रेंड्स वो वीडियो फाइल देख सकते हैं। तो ड्रॉपबॉक्स इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अगर किसी को अभी तक आइडिया ना हो ड्रॉपबॉक्स का, तो यू कैन गो ऑन द इंटरनेट एंड सर्च फॉर द ड्रॉपबॉक्स। सो ड्रॉपबॉक्स इज द ऑनलाइन स्टोरेज यू कैन से, एंड यू कैन स्टोर एनीथिंग लाइक फाइल, वीडियो, whatever you want, and you can use from anywhere over the internet. इसी तरह से गूगल का एक ऐप इंजन होता है, Heroku है। ये प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए, ड्रॉपबॉक्स। So let's understand little bit how Dropbox working. So Dropbox utilizes cloud model to provide services to the user. The underlying infrastructure and restores resources need to run on Dropbox and managed by the cloud provider. तो इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा आप देखो तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको, और आप उस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कर रहे हो। लाइक ड्रॉपबॉक्स एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आप वहां पे डेटा स्टोर कर सकते हो, आप वहां पे कोई वीडियो डाल सकते हो, उसे प्ले कर सकते हो, आप फोटोज या इमेजेस स्टोर कर सकते हो। तो इस तरह की फैसिलिटी आपको ड्रॉपबॉक्स प्रोवाइड करता है। सो Dropbox for a platform as a service, there's a cloud computing model that provides a platform for developers to build, run, and manage the application. So this is similar kind of platform as a service things. इसमें Dropbox में एक और फीचर है, जैसे कि एक जिसे 2 GB तक ये फ्री रहता है अगर आप कभी डेटा स्टोर करते हो तो, एंड रेस्ट पार्ट द पेड, बट they are not going to authenticate your data. It's free platform for you. What kind of data you are putting, nothing. It doesn't matter for the Dropbox. So this kind of platforms they are providing by the cloud, and you can use that platform as a service. So this is the third one, the platform as a service. So अभी तक हमने पढ़ा कि क्लाउड क्या है, और क्लाउड के मार्केट कैप्चर्स क्या हैं, फीचर्स क्लाउड के क्या हैं, एडवांटेजेस क्लाउड के क्या हैं, और मेन क्लाउड की सर्विसेज जो कि सैस हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस हो गया, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस हो गया, ये क्या होती हैं, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल। और इन ए सिंगल सेशन ऑनेस्टली हम बहुत ज्यादा इससे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट अगर आप इसके अंदर जाओगे तो काफी वास्ट है क्लाउड। फॉर एग्जांपल अगर हम एडब्ल्यूएस का एग्जांपल लेते हैं तो एडब्ल्यूएस हर तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। लाइक वहाँ पे एक S3 स्टोरेज होता है जहाँ पे आप कितना भी डेटा स्टोर कर सकते हो, एंड कॉस्टिंग आर वेरी लो। सो अगर आप S3 स्टोरेज यूज करते हो तो S3 स्टोरेज में क्या होता है कि आप उसको आउटसाइड सर्वर भी एक्सेस कर सकते हो, मतलब ओवर द इंटरनेट। अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे है एंड यू वांट टू कनेक्ट दैट डेटा विद द क्लाउड एनवायरनमेंट, you can put your data on the AWS environment S3 and you can directly connect with them. So AWS काफी इस तरह के वास्ट थिंग्स प्रोवाइड करता है, और वैसे एक नट से ये कह सकते हैं कि जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं उनकी सर्विसेज ऑलमोस्ट एक जैसी हैं। नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, बट अगर किसी को भी लाइक AWS क्लाउड का आइडिया है तो वो एजोर या GCP पे भी काम कर सकता है फॉर इनिशियल लेवल। कुछ कॉम्प्लेक्स जब हम कोई एपीआई यूज करते हैं या कुछ ऐसे यूज करते हैं, उस केस में थोड़ा बहुत अंतर है। अदरवाइज सबके जो मेन फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। तो इस तरह से अभी तक हमने ये क्लाउड का डिटेल थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा। सो नेक्स्ट इन आवर एजेंडा इज डेवऑप्स। सो लेट्स मूव टू द डेवऑप्स। आई नो इट्स अ स्मॉल वेबिनार, तो काफी टफ है सारी बातों को एक साथ समझना, बट
अगर आप एक बार थोड़ा सा खुद से स्टडी करोगे, गूगल करोगे, तो आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। मेरा आइडिया ये है इस सेशन में कि मैं आप लोगों को ये इंट्रोड्यूस कर दूं या इंट्रोडक्शन दे दूं कि क्लाउड क्या होता है, क्या किस तरह की सर्विसेज हैं मार्केट में, किस तरह की डिमांड है क्लाउड की, और किस तरह की जॉब्स हैं। और सबसे जो मेन बात है, नॉर्मली नॉर्थ इंडिया में थोड़ी सी जो लीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनकी अवेयरनेस कम है। और आप अगर देखोगे कि बैंगलोर हो गया या चेन्नई हो गया या फिर पुणे है, वो हमसे थोड़ा आगे इसीलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ के लोग टेक्नोलॉजीज, न्यू टेक्नोलॉजीज को जल्दी अडॉप्ट करते हैं और हम थोड़ा सा स्लो हैं इसको अडॉप्ट करने में। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू लाइक एक्सप्लेन यू गाइस कि आप लोग थोड़ा सा क्लाउड को पढ़ो, इस तरह की टेक्नोलॉजीज देखो। उससे क्या होगा कि आपके लिए एक नया जॉब स्ट्रीम होगा, क्योंकि क्लाउड एंड डेवऑप्स, आई हैव द एग्जैक्ट डेटा अबाउट दैट, सो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में आएगा कि इस समय मार्केट ट्रेंड में टॉप 3 जॉब्स में क्लाउड और डेवऑप्स है। बट थोड़ी सी अवेयरनेस की हमारी साइड्स में कमी है, लाइक नॉर्थ इंडिया में। तो वो पार्ट अभी मैं कवर करूंगा। सो लेट्स मूव टू द डेवऑप्स। सो अकॉर्डिंग टू recent market survey, the DevOps market will exceed $20 billion by 2026. So this is the CAGR rating, and it's increasing by 24.7% from 2019 to 2026. So what is DevOps? DevOps has facilitate rapid and dependable software development, delivery, improved quality, and high customer satisfaction. So in DevOps basically एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोगों के मन में होता है कि जैसे आजकल काफी नई चीजें आ रही हैं जैसे चैट जीपीटी, एआई, तो काफी जॉब्स पे इनका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। लाइक जो नॉर्मल प्रोसेसिंग जॉब है या फिर कंटेंट या फिर बीपीओ, इन पे काफी इम्पैक्ट है जॉब्स पे। बट डेवऑप्स एक ऐसा फील्ड है, क्लाउड एंड डेवऑप्स, जिन पे इनका कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। एंड इट्स ए लॉन्ग टर्म मार्केट में कोई डाउन होने का चांस नहीं है इसमें। बट अगर आप अदर टेक्नोलॉजी या अदर जॉब्स में जाओगे तो यस, एआई एंड चैट जीपीटी टाइप की चीजों का इम्पैक्ट जॉब मार्केट पे होता है। बट डेवऑप्स या क्लाउड में इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। सो let's look the future of DevOps and trend, so you can expect to see मेजर जो DevOps के पार्ट हैं, जिसमें आता है सर्वरलेस कंप्यूटिंग, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर, लो कोड नो कोड एप्लीकेशंस एंड प्लेटफॉर्म्स, DevSecOps, Kubernetes, and GitOps. So I'm going to explain little bit about that because these are the vast topic, and maybe we can cover sometime when we have bigger picture on this learning platform. बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल करूंगा कि सर्वलेस कंप्यूटिंग क्या है, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या है, डेवसेकऑप्स क्या है, क्यूबरनेट्स क्या है, गिटऑप्स क्या है। तो लेट्स गो विद सर्वलेस कंप्यूटिंग। तो सर्वलेस कंप्यूटिंग सिंप्लीफाई द प्रोसेस ऑफ डिप्लॉइंग and running applications by extracting away the infrastructure management, allowing developer to focus slowly on writing code and building their functions. तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि आपका सर्वर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको सिर्फ क्या करना है, आप अपने पार्ट पे देखो कि आप कोड लिखो, उसको डिप्लॉय करो और उसकी फंक्शनैलिटी चेक करो, बस। बाकी जो बाकी पार्ट है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट है या फिर डिप्लॉयमेंट है, वो सारी चीजों से आपको कोई मतलब नहीं होता है। तो सर्वरलेस कंप्यूटिंग में जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे एडब्ल्यूएस के अंदर आता है लैम्डा, एजोर में फंक्शंस, एजोर फंक्शंस जिनको बोलते हैं, एंड गूगल क्लाउड में भी फंक्शंस होते हैं। तो देयर आर थ्री थिंग्स, एडब्ल्यूएस लैम्डा, एजोर फंक्शंस एंड गूगल क्लाउड फंक्शंस। ये तीनों सेम है,
बट इनके नाम अलग अलग हैं बिकॉज दिस इज फ्रॉम द डिफरेंट क्लाउड प्रोवाइडर्स. So serverless computing, you can say कि you don't need any server or worry about the server or deploying the code. आपको बस क्या करना है कि बस कोड लिखना है, उसको टेस्ट करना है. बाकी सारी चीजें सर्वरलेस कंप्यूटिंग में डेवऑप्स के थ्रू मैनेज होती हैं. नेक्स्ट आता है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर. सो microservice architecture is ki break down your software application into smaller independent services that can be developed, deployed and scaled independently. So कहने का मतलब ये है कि हम क्या करते हैं कि हमारा जो पूरा आर्किटेक्चर होता है उसको छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर देते हैं. और अगर हमें स्केल करना है, जैसे कि मान लो कि डेवलपमेंट सर्वर अलग हो जाता है, डिप्लॉयमेंट सर्वर अलग हो जाता है, और ये सब अलग-अलग मैनेज होते हैं. तो उससे क्या होता है कि हमारा मैनेजमेंट काफ़ी ईज़ी हो जाता है. तो अगर हमें जैसे नॉर्मली एनवायरनमेंट में क्या होता है कि हम एक डेवलपमेंट सर्वर बनाते हैं जहाँ पे हमारी टीम डेवलप करती है, फिर उसको हम डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, उसको फिर स्केल करते हैं इंडिपेंडेंटली. तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि हम सबके लिए अलग-अलग ब्लॉक्स यूज़ करते हैं. So each microservice can have its own technology stack and database depending on the specific requirement of the service. For example, जैसे मान लो कि कोई एप्लीकेशन है जो 2-3 चीजों को यूज कर रही है एक साथ, तो उनके डेटाबेसेज अलग होंगे, उनका सर्वर एनवायरनमेंट अलग हो सकता है, मे बी कोई जावा पे बना है, कोई डॉटनेट पे बना है, कोई सिक्वल सर्वर यूज कर रहा है, कोई ऑरेकल यूज कर रहा है. तो सबके अपने अपने टेक्नोलॉजी स्टैक होते हैं और सब इंडिपेंडेंट होते हैं, लेकिन सारा कुछ एट एंड एक ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस होता है. और आपको क्या दिखता है, जैसे मैंने अब आपको नेटफ्लिक्स का एग्जांपल दिया. नेटफ्लिक्स में हो सकता है कि उनके पास कई तरह के सर्वर हों, उनके पास कई तरह के डेटाबेस सर्वर्स हों, और वो सारा कुछ एक प्लेटफॉर्म पे आके आपको ब्राउज़र के थ्रू या जो उनका ऐप होता है, उसके थ्रू एक्सेस होता है. तो अगर माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में क्या होता है कि चूंकि छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, तो अगर कहीं कोई फेल्योर होता है, तो उसको क्रैक करना आसान होता है कि वो फेल्योर किस पर्टिकुलर पार्ट में होता है, और हमें सिर्फ उसी पार्ट को मैनेज करना होता है या उसी पार्ट को फोकस करना होता है. तो इस तरह से क्या होता है कि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जो है, वो चीज़ों को काफ़ी ईज़ी बना देता है. नेक्स्ट वन इज़ लो कोड. आजकल आप लोगों ने सुना भी होगा लो कोड, नो कोड. लो कोड नो कोड का मतलब होता है कि मिनिमम कोडिंग एफर्ट से एक एप्लीकेशन को डिजाइन करना. नो कोड एक्चुअल में कोई चीज नहीं होती है, लो कोड होता है. लो कोड मतलब क्या होता है कि जैसे आप मान लो 500 लाइन का कोड लिख के कोई फॉर्म बनाते हो कोई डेटा सबमिट करने के लिए, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको 500 लाइन नहीं लिखना होगा, आपको कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करके और कुछ एक लाइन कोड लिख के वो फॉर्म क्रिएट करना होगा. अगर आप लोगों ने काम किया है जैसे कि पावर एप्स पे किसी ने किया होगा, या बबल एक प्लेटफॉर्म आता है, तो पावर एप्स में क्या होता है कि हम माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटफॉर्म है पावर एप्स, उसमें क्या होता है कि हम एप्स क्रिएट करते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. तो आप चीजों को ड्रैग करके और एक फॉर्म बना के और आप ऐप बना सकते हो. तो 70-80% कोडिंग एफर्ट जो है वो खत्म हो जाता है इनमें. और ये सारे जो प्लेटफॉर्म है ये क्लाउड बेस्ड होते हैं. जैसे कि आप पावर एप्स अगर सर्च करोगे इंटरनेट पे, देन यू विल गेट दैट. सो इन समरी, those no-code application platform empower individuals, including those without extensive coding skills, to build application using visual interface and pre-built components. So you can say these platforms development a process, promote collaboration, and accelerate the application delivery timeline. तो अब जैसे कि एक तो आप देखो कि इसमें ज्यादातर मॉड्यूल्स पहले पहले से बने होते हैं, तो अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके लगा रहे हो तो ऑब्वियसली जो चीज एक महीने में बननी है हो सकता है एक हफ्ते में बन के तैयार हो जाए. और कुछ लोगों के बहुत अच्छी कोडिंग स्किल नहीं होती है, बट दे कैन ऑल्सो डेवलप द एप्लीकेशन. सो लो कोड नो कोड इस समय काफी मतलब मार्केट में ट्रेंडिंग है और लोग इसको यूज कर रहे हैं.
एक लेवल पे आप वर्डप्रेस को भी बोल सकते हो कि ये लो कोड प्लेटफॉर्म है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप थोड़ा कनेक्ट करो कि आपके आसपास कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लो कोड में है। तो पावर एप्स, आउट सिस्टम, मेंडिक्स, बबल एंड वर्डप्रेस, it's coming in under umbrella of low code no code technologies. Next is DevSecOps. इसके ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे समझ सकते हो कि DevOps के साथ अगर हम सिक्योरिटी को ऐड कर दें तो दिस इज DevSecOps. ये थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस इन दिस पर्टिकुलर वेबिनार, but separately if someone want to know about this they can ping me on the LinkedIn or where I can give you the details. Next one is Kubernetes. So Kubernetes is a powerful tool that simplifies the management and deployment of containerized applications. So क्लाउड पे क्या होता है कि एप्लीकेशन कंटेनर फॉर्म में बनती हैं, जैसे कि डॉकर एक कंटेनर होता है। जिन्होंने अगर थोड़ा बहुत क्लाउड के बारे में नॉलेज होगी या डेवऑप्स पढ़ा होगा उनको आइडिया होगा कि डॉकर एक कंटेनर होता है और क्यूबरनेट उसी का पार्ट है। तो आप ये कह सकते हो कि जो डिप्लॉयमेंट होता है, डिप्लॉयमेंट ऑफ एप्लीकेशन, वो सिंप्लीफाई करने का काम क्यूबरनेट करता है। तो डेवऑप्स में क्या है कि सब चीजें होती हैं, जैसे डेवलपमेंट, ऑपरेशंस, डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट पार्ट क्यूबरनेट्स के थ्रू हम एक्सेस करते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज गिटऑप्स। सो गिट का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा सबने, अगर आपने थोड़ा बहुत कोडिंग किया होगा तो गिट क्या होता है कि एक रिपोजिटरी होती है जहां पे आप अपने एप्लीकेशंस को स्टोर कर सकते हो। आप वहां पे वर्जन कंट्रोल कर सकते हो, चेक इन चेकआउट कर सकते हो, और इस रिपोजिटरी के थ्रू आप मल्टीपल डेवलपर्स को अपने एप्लीकेशन में काम करने के लिए ऐड कर सकते हो। तो इस ऑपरेशनल मॉडल जिसमें कि डिप्लॉइंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वर्जन कंट्रोल, कोलैबोरेशन, ऑटोमेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्रोसेस, ये सारी चीजें गिटऑप्स के अंदर आती हैं। तो आई एम नॉट गोइंग टू गिव मोर डिटेल ऑन दैट, बट आप इतना समझ लो कि गिट गिट जो है, गिट के थ्रू आप पूरा का पूरा प्रोसेस कंट्रोल करते हो। और अभी पहले गिट ओपन सोर्स था बट अभी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज कर लिया है, तो नाउ इट्स माइक्रोसॉफ्ट इज कमिंग अंडर अम्ब्रेला माइक्रोसॉफ्ट। तो गिटऑप्स में आप वर्जन कंट्रोल कर सकते हो, आप अपनी एप्लीकेशन को स्टोर कर सकते हो, मल्टीपल ब्रांचेज बना के आप किसी को भी एक्सेस कंट्रोल कर सकते हो, इसका वर्जन कंट्रोल कर सकते हो, और डिप्लॉयमेंट भी इसको कर सकते हो। इवन आप प्रीवियस वर्जन से कंपेयर भी कर सकते हो अगर आपको चेंजेस कंपेयर करने हैं कि आपके एप्लीकेशन या आपके कोड में क्या चेंजेस हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपके गिटऑप्स के अंदर आती हैं। डेवऑप्स में बहुत सारे टूल्स होते हैं। इन टूल्स को हम स्टडी करते हैं, बट ये है कि कुछ मेजर टूल्स हैं, अगर वो आपको आते हैं तो दैट सफिशिएंट। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको ब्रीफ करूंगा कुछ मेजर टूल्स में। तो फर्स्ट वन इज जेनकिंग। So Jenkins is an open source automation server for continuous integration and continuous delivery. So it's called CI/CD. आप लोगों ने सुना भी होगा, CI/CD पाइपलाइंस आजकल काफी फेमस है। तो CI/CD जो कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूअस डिलीवरी जो होता है, उसके लिए हम जेनकिंग एज ए टूल यूज करते हैं। So Jenkins is an automation server that helps developers to perform the various tasks in the software development life cycle. So इसमें क्या होता है कि कॉन्फ़िगरेबल पाइपलाइन सिस्टम्स होते हैं जो डिफरेंट टूल से इंटीग्रेट हो जाते हैं, डिफरेंट टूल एंड टेक्नोलॉजी से, और कॉन्टिन्यूटी में ये इंटीग्रेट करते हैं इन सबको एंड डिलीवर करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप 2-3 एप्लीकेशन यूज कर रहे हो और आपने एक CI/CD पाइपलाइन यूज की है, तो वो क्या करता है कि रन टाइम पे सारे को चेक करता रहता है कि कोई बिल्ट फेल तो नहीं हो रहा है।
तो इसमें क्या होता है कि एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं दैट डिफाइन हाउ द सॉफ्टवेयर शुड बी बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉयड। और जो इसमें फेजेज हम डिफाइन करते हैं, लाइक कस्टमाइज टू परफॉर्म, लाइक इज द पाइपलाइन कस्टमाइज टू परफॉर्म स्पेसिफिक एक्शन, तो सच एज कंपाइल कोड, रनिंग टेस्ट, जनरेट रिपोर्ट। सो ये सारे जो भी स्टेप्स हम इसकी पाइपलाइन में करते हैं, ये हर टाइम पे वेरीफाई करता रहता है। और अगर किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो पाइपलाइन फेल हो जाती है और हमें एक प्रॉपर मैसेज मिल जाता है, और उस मैसेज के थ्रू हम जाके उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। तो जेनकिन क्या करता है कि आपके कंप्लीट डिलीवरी मॉडल को हैंडल करता है, और इसको हम कॉन्टिन्यूअस क्यों बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि हर समय ये करता रहता है। मतलब ये कनेक्टेड होता है, जैसे ही आप अपने गिटहब में या गिटलैब्स में या किसी जो भी आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज कर रहे हो उसमें कोई भी चेक इन करते हो, इमीडिएटली ये क्या करता है कि वेरीफाई करता है अपने सारे स्टेप्स को, और अगर कोई भी स्टेप उसमें परफॉर्म नहीं होता तो वो फेल हो जाता है। So Jenkins is the automation server for this continuous integration and continuous deployment. Git already we have discussed, तो मैं अभी उस पे नहीं जाता हूँ। Docker. So Docker का काम है पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रनिंग एप्लीकेशन विद द कंटेनर्स। तो ये थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज है अभी, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर विद द डेवऑप्स टेक्नोलॉजी और क्लाउड टेक्नोलॉजी। बट सिंपली आप ये समझ सकते हो कि किसी भी एप्लीकेशन प्रोसेस को पैकेज करना और उसको डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट में डालना और उसको रन करना, ये डॉकर का काम है। तो इट्स ए कंटेनर एक्चुअली। और डॉकर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर सकते हो, चाहे कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर हो, इधर इट्स AWS, इट्स Azure or any. So that way you can provide the Docker. Next one is Kubernetes. Kubernetes we already discussed. Another important tool is Ansible. So what is Ansible? Ansible is an automation tool that simplify the management and configuration of computer system by allowing you to define desired states in human readable playbook. So you can say it's an automation tool for configuration management and application deployment and task automation. तो अगर आपको जैसे कोई भी एप्लीकेशन है उसका जो एप्लीकेशन मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है वो एनसिबल के थ्रू हैंडल होता है। सो इट्स ओपन सोर्स ऑटोमेशन टूल, और ये ज्यादातर जो आईटी एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उनके लिए होता है। तो इससे क्या होता है कि वो अपने टास्क ऑटोमेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज बना सकते हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड इसको यूज कर सकते हैं। तो एंसिबल ये पुश बेस्ड मॉडल होता है, तो वेयर द कनेक्ट टू द टारगेट सिस्टम्स ओवर SSH और अदर प्रोटोकॉल्स एंड एग्जीक्यूट द टास्क डिफाइंड इन द देयर प्लेबुक। इसमें एक सिंटैक्स यूज होता है जिसको हम YAML सिंटैक्स कहते हैं। तो उस सिंटैक्स के थ्रू इसमें हम स्क्रिप्ट्स लिखते हैं। तो ये एंसिबल है। तो मैंने अभी तक डेवऑप्स में डेवऑप्स क्या होता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं उनको कवर करने की कोशिश की, आपको बताया कि डेवऑप्स की मार्केट कैसे इंक्रीज हो रही है। और नेक्स्ट पार्ट में हम थोड़ा सा करियर और जॉब्स की बात करेंगे कि अगर आप क्लाउड का कोर्स करते हो या फिर डेवऑप्स लर्न करते हो तो किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं और किस तरह से मार्केट ग्रो कर रहा है इसका। तो we have some case studies for that, so you can see in front of the screen. So 56% of survey respondents said that plan to hire for new role in the coming year 2023, and 39% say that plan to hire for the vacated roles. So आप देखोगे कि इसमें सबसे ज्यादा हायरिंग अभी करने आने वाले ईयर्स में डेवऑप्स और क्लाउड में होने वाली है, जिसमें AWS, Azure, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, क्यूबरनेट्स और डॉकर एंड टेराफॉर्म ऑल्सो, ये लीडिंग टेक्नोलॉजीज हैं जिनके लिए सबसे ज्यादा हायरिंग होने वाली है। अब मैं आपको एक डेटा दिखाता हूँ
लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट इन डिमांड टेक जॉब्स राइट नाउ। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हो तो ये जो सर्वे है इसमें ये बताया गया है कि 86% of technology managers said it's challenging to find skilled professionals in software and application development, technology, process automation, and cloud architecture operations. बिकॉज मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है बट उस वे में प्रोफेशनल्स अवेलेबल नहीं है क्लाउड एंड डेवऑप्स में। सो आप देखोगे तो अभी इस परसेंटेज में जो डेटा है आपके सामने, इसमें तीसरे नंबर पे ही साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर आता है। साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर इज आल्सो पार्ट ऑफ डेवऑप्स। उसके बाद देखो तो थर्ड, फोर्थ डेवऑप्स स्पेशलिस्ट, और उसके बाद से इंजीनियर डेटा। तो आप देखोगे कि जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग जॉब है इस समय वो है डेवऑप्स एंड क्लाउड। ऊपर के दो देखोगे तो वो इंजीनियरिंग मैनेजर्स एंड सीनियर लेवल सी स्वीट्स होते हैं, लेकिन उनके बाद जो सबसे ज्यादा डिमांड है वो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, डेवऑप्स स्पेशलिस्ट एंड क्लाउड स्पेशलिस्ट की। उसके नीचे बाकी जॉब्स होती हैं। तो यू कैन सी द मार्केट कैप्चर ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजीज में डेवऑप्स एंड क्लाउड सबसे ऊपर आता है। तो अगर हम करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि अगर हमें डेवऑप्स और एडब्ल्यूएस में करियर बनाना है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट काइंड ऑफ डिमांड इन द मार्केट। और चूंकि एटीएच प्रोफेशनल प्रोग्राम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बट इससे पहले मैं एटीएच के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ करूंगा इन द एंड ऑफ द सेशन। बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि वी आर अ लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी एंड वी हैव ऑफिसेज इन यूएस, ऑस्ट्रेलिया, and mostly we are hiring in the DevOps technology, DevSecOps, and other part like blockchain and cloud. तो हमें जो रिसोर्सेज मिलते हैं लाइक वी हैव रिसेंटली ओपन आवर ऑफिस इन नोएडा एंड वी ट्राई टू हायर पीपल इन नोएडा। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको बताऊं रिसोर्स की इतनी ज्यादा कमी है कि हमें रिसोर्स मिलते नहीं है, और जो भी रिसोर्स मिलते हैं वो हमें साउथ से मिलते हैं। एक छोटा सा डेटा है मेरे पास। माई एच आर पुट ए जॉब ऑन द naukri.com फॉर द डेवऑप्स इंजीनियर, एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि 5,000 resumes we get, and in those 5,000 4,800 resumes came from South India and 200 resumes from North India including NCR. So that way you understand कि कितना बड़ा गैप है, एक खाली स्पेस है जहां पे अगर आप डेवऑप्स और क्लाउड सीखते हो, स्टडी करते हो, तो आपके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। वी हैव कलेक्टेड सम डेटा फ्रॉम द सैलरी पार्ट इन इंडिया। सो क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर रेंजेस बिटवीन 3.8 to 17.9 lakh एनुअल सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी, डिपेंड ऑन द कंपनीज एंड देयर रिक्वायरमेंट। तो अगर हम एवरेज करते हैं तो करीब 7 लाख के पैकेज पे इनिशियल हायरिंग इंडियन कंपनीज कर रही हैं इस समय डेवऑप्स में। और ये जो डेटा है ये हमने मतलब 25,000 के आसपास जॉब्स पे सर्वे करके बनाया है। सो आप देखोगे तो मतलब जो एवरेज 7.0 एलपीए है, मतलब एस्टिमेटेड आपकी टेक होम सैलरी 52,000 से 53,000 के आसपास होती है स्टार्टिंग में। अगेन इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी एंड व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स यू हैव ऑनेस्टली, बट जो मार्केट ट्रेंड है वो यही है कि आप इस समय काफी हाई रेंज सैलरी डेवऑप्स एंड क्लाउड में ऑफर हो रही है मार्केट में। एंड अगेन फॉर द क्लाउड, एनी क्लाउड, मतलब आप एडब्ल्यूएस से भी जा सकते हो क्योंकि अभी एडब्ल्यूएस का मार्केट कैप्चर ज्यादा है। एडब्ल्यूएस में ज्यादा जॉब्स हैं, यू कैन से ज्यादा कंपनीज एडब्ल्यूएस एज ए बिजनेस यूज कर रही हैं, बट सिमिलरली एजोर में भी काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। और एजोर की जो ग्रोथ रेट है वो अमेजॉन से ज्यादा है, बट अमेजॉन का मार्केट कैप्चर ज्यादा है। एजोर थोड़ा सा मार्केट में देर से आया था, बट उसने काफी तेजी से अपने आप को स्पीड अप किया हुआ है। तो आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म से जाओ, इधर एडब्ल्यूएस और यू कैन चूज एडब्ल्यूएस और एजोर विच एवर कंफर्टेबल फॉर यू, बट यस डेवऑप्स इज सेम फॉर बोथ। तो आप किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म से जाके डेवऑप्स में एंट्री कर सकते हो। और जॉब्स सैलरी तो आपके सामने फ्रंट पे, आप ये सब चीजें गूगल पे रिसर्च भी कर सकते हो, ठीक है। नाउ
I'm going to explain you a little bit about the certifications, like some certifications offered by DevOps providers and cloud providers. See, certification is not the guarantee to find a job, but yes, if you have the certification, it's a icing cake, you can say. तो सर्टिफिकेशन होने से मतलब हमारे पैकेजेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है और जॉब मिलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. सो अगर आप देखो तो जो मेजर सर्टिफिकेशंस हैं, AWS सर्टिफाइड डेवऑप्स इंजीनियर प्रोफेशनल, सर्टिफाइड क्यूबरनेट्स इंजीनियर्स, डॉकर सर्टिफाइड एसोसिएट्स, Puppet certified professionals and Microsoft certified DevOps engineer expert. ये DevOps के कुछ सर्टिफिकेशन हैं. और जो ATS प्रोफेशनल प्रोग्राम्स का एक ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम लोग जो सर्विसेज देते हैं, अगर हमारे से कोई कोर्सेज इस तरह के करते हैं तो हमारा 100% इसमें सर्टिफिकेशन क्लियर करने के चांसेस रहते हैं. तो अभी तक कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि जो सर्टिफिकेशन जिसका क्लियर ना हुआ हो. सो दैट काइंड ऑफ you can say training we are providing. So 100% you will clear those certificate if you go with our training program. इसी तरह से AWS की अपनी सर्टिफिकेशन जर्नी है. मतलब जो अभी प्रीवियस स्क्रीन पे आपने देखा, ये DevOps रिलेटेड सर्टिफिकेशन थे. तो AWS का DevOps सर्टिफिकेशन, इसी तरह से Microsoft का DevOps सर्टिफिकेशन और कुछ टूल्स जैसे Kubernetes, Docker, Puppet, इनके अपने सर्टिफिकेशंस होते हैं जो कि आप कर सकते हैं. अब अगर आप सिर्फ क्लाउड पे जाते हैं, AWS को थोड़ा दूर करें, तो AWS के DevOps को थोड़ा दूर करें, सिर्फ AWS पे जाएं, तो AWS के अपने सर्टिफिकेशंस हैं. फॉर एग्जांपल AWS क्लाउड प्रैक्टिशनर फंडामेंटल, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट एंड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल एंड AWS डेवलपर एसोसिएट. तो ये सारे सर्टिफिकेशन आपको नहीं करने होते हैं, लाइक इसमें भी और इसमें भी. मतलब ये डिपेंड करता है कि जैसे आप अगर AWS के थ्रू जा रहे हो DevOps में, तो आपको AWS सर्टिफाइड DevOps इंजीनियर का सर्टिफिकेशन करना होता है. इसी तरह अगर आप Azure के थ्रू जा रहे हो तो आपको Microsoft का करना होता है. ये सारे नहीं करने होते, बट हमने सारे को समरी किया हुआ है. सो सिमिलरली अगर आप AWS में जाते हो एज ए डेवलपर प्लेटफॉर्म, तो आपको एसोसिएट डेवलपर का सर्टिफिकेशन करना होता है. और अगर आप एज ए क्लाउड आर्किटेक्ट जाना चाहते हो, तो उस केस में आपको सोल्यूशन आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन करना होता है. तो इट डिपेंड कि व्हाट काइंड ऑफ ट्रैक यू हैव चूजन, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इनमें से सर्टिफिकेशन चूज करने होते हैं. और अगर आप सर्टिफिकेशन क्लियर करते हो तो उसका इम्पैक्ट आपके जॉब पे और आपकी सैलरी पे पड़ता है. सो ये AWS के सर्टिफिकेशंस हैं. सिमिलरली Azure के अपने सर्टिफिकेशंस हैं. सो Azure सर्टिफिकेशन जर्नी में Azure फंडामेंटल्स, पावर प्लेटफॉर्म फंडामेंटल, पावर प्लेटफॉर्म वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, and Dynamic 365 fundamental. One second. Yeah, Dynamic 365 fundamental. Give me a moment. Sushil, confirm I'm audible. Okay, so the Azure certification journey, Azure fundamentals, Power Platform fundamental, and Microsoft 365 certified fundamentals. Again, Microsoft 365 data fundamentals, Azure AI fundamentals. So ये Azure के अपने specific certifications है. Again, you need to choose the track like which certification is suit for you.
एंड मे बी जो कैरियर गाइड होते हैं वो आपको बता भी सकते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेशन आपको करना चाहिए. So that's all for this session. QA session अभी हम कर नहीं सकते because we are on the remote platform. So if you have any queries, like you can dial us or you can email us and we will handle all your queries. I'm going to little bit explain you about ATH Info Systems. So we have started our journey 10 years back and we have opened an office in Ohio. And now we have 4 offices in US and 1 in Australia. And we recently, I think 1.5 years back, we have opened our office in Noida. So we are a core software development company. And recently we have started this application, the professional training program. And it's around 1 year we have started this professional training program and it's very successful in the market. So we can discuss more on that. You can communicate with us or our team. One second. So that's all for this session. Once again, thank you everyone for the joining and thanks to management to provide me this opportunity to come in front of you and explain everything. Thank you everyone. Have a good day.